Hello dears, welcome again in our online study program, and today we are going to start our next lesson in the book from Movement. So the lesson name is The Adventures of Toto. The lesson is written by Ruskin Bond. In this lesson, the narrator tells us that how much problems he got due to a small monkey. The narrator's grandfather bought a monkey, and the monkey created a lot of problem to them. So it's a very interesting story. We should start. The Adventures of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? तो पहले जो लेसन स्टार्ट करने से पहले नरेटर हमसे पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी मोंकी को पाला है? टोटो इज ए बेबी मोंकी. जो मोंकी जिस मोंकी की कहानी है उसका नाम है टोटो. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्टीरियस और डोसाइल. अब हमें देखना है कि क्या है मिस्टीरियस है. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. ग्रैंडफादर ने एक टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदा था 5 रुपए में. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. तो जो टोंगा ड्राइवर वो हमेशा जब भी तांगा चलाता था अपने तांगे के साथ उस बंदर को बांधे रखता था. And the monkey looked so out of place there the grandfather decided he would add the little fellow of his private zoo. और जो मंकी था वह इस तरह की उसके एक्टिविटीज थी या वो इस तरह का दिखता था कि नरेटर के ग्रैंडमदर ने डिसाइड कर लिया कि वह अपने जो छोटा सा अपना जू था अपने घर पर उन्होंने पास कुछ जानवर पाले हुए थे उनके साथ वह मंकी को भी पालेगा. टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी. टोटो एक प्रिटी मंकी था. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. और जो उसकी आंखें थी जो उसकी चमकीली आंखें थी वो हमेशा deep set eyebrows के नीचे उसकी चमकती थी. Which were a pearly white were very often displayed a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. And his teeth और जो उसके दांत थे which were a pearly white जो बहुत मोती के समान सफेद चमकते थे. were often very often displayed a smile. और वो कभी कभी जब वो खुश होता था वो अपने स्माइल कर रहा था तो उसके परले वाइट टीथ दिखते थे. That frightened the life of the elderly Anglo-Indian ladies. और जिसको देखकर जो अर्ली एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो उससे देख के डर जाती थी. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. और उसके हाथ में रुके हुए थे ऐसा लगता था कि बहुत सालों से जैसे वह धूप में बैठा हुआ और उसके हाथ बहुत कमजोर हो गए थे. Yet his fingers were quick and big. उसके जो फिंगर्स थे बहुत तेजी से चलते थे और उनके फिंगर्स बहुत बड़े बड़े थे. And his tail with adding to his good looks. और जो टेल थी लगता था उसके उसमें उसकी बॉडी में एक अच्छी लुक लगती थी उसकी जो टेल थी. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Grandfather विश्वास करते थे कि कोई भी जानवर की खूबसूरती उसके टेल से होती है. Also served as a third hand. और उसका जो टेल थी उसके तीसरे हाथ का काम करती थी. He could use it to hang from a branch. और वह यूज करता था अपने टेल को to hang from a branch. एक ब्रांच से पेड़ की शाखा से लटकने के लिए. And it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. Or it was capable of scooping up. और वो जब इधर उधर कूदता था and delicacy that might be out of reach of his hands. अगर कुछ चीज उसके हाथों की पहुंच से दूर होगी तो वह उसे अपनी टेल से उसे पकड़ता था. Grandmother always passed when grandfather brought home some new bird or animal. और जब भी ग्रैंडफादर कोई नया न्यू बर्ड और एनिमल को घर पर ले आते थे तो ग्रैंडमदर जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी. So it was decided that तो यह डिसाइड किया गया कि टोटो's presence should be kept a secret. और टोटो का प्रेजेंस क्या रखा जाएगा घर पे? एक सीक्रेट रखा जाएगा. From her until she was in a particularly good mood. और डिसाइड किया उसके
नरेटर ने, उसके ग्रैंडफादर ने, कि जब तक दादी का जो ग्रैंडमदर थी उसका मूड अच्छा नहीं होगा तब तक क्या किया जाएगा, दादी को यह नहीं बताया जाएगा कि उनके घर पर टोटो नाम का एक बंदर भी आ चुका है। एंड grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. अब ग्रैंडफादर और नरेटर ने उसे, नरेटर के जो बेडरूम वॉल थी उसका एक छोटा सा क्लोजर था, वहां पर उसे रखा। Where he was tied securely, जहां वो पूरी तरह से बंद था। और so we thought, और जैसा हमने सोचा था, to a peg fastened into the wall, और हमें लगा था कि शायद वो वॉल पर फंस जाएगा, तो उससे उसे बचा के रखा गया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, अब जब उन्होंने उस क्लोजर में उसे बांध दिया था पूरी तरह से, a few hours later, उसके कुछ घंटों के बाद, when grandfather and I, जब grandfather और narrator came back to release Toto, टोटो को रिलीज करने के लिए, टोटो को खुला छोड़ने के लिए आए, we found that the walls, हमने देखा कि जो walls थी, which had been covered with some ornamental papers chosen by the grandfather, और हमने देखा जो दीवार पर जो लगी हुई थी ornamental paper से जो दीवार को कवर किया गया था, now stood out as naked brick and plaster। अब उसमें क्या था, उसने वो सारी सब उस मोंकी ने, जो टोटो मोंकी था, उसने वो सारी चीजें फाड़ के रख दी। The peg in the wall had been wrenched from its socket, और जो वॉल की जो पैक थी वो उसके सॉकेट से बाहर निकल गई थी। एंड माय स्कूल ब्लेजर व्हिच हैड बीन हैंगिंग देयर, और जो नरेटर का जो स्कूल का जो ब्लेजर था, जो लटका हुआ था, वाज इन स्ट्रेस, उसे उसने पूरी, उस मोंकी ने उसे पूरी तरह से फाड़ दिया था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडफादर मदर वुड से, अब मुझे डर लगा, नरेटर को डर लगा कि अब ग्रैंडमदर क्या कहेंगी, क्योंकि ग्रैंडमदर को बताने था कि उस घर पर एक बंदर भी आया हुआ है। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ग्रैंडफादर को कोई भी चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, और वह टोटो की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश थे। He is clever, said grandfather, ग्रैंडफादर ने उसे देखते कहा, उसकी एक्टिविटीज को देखते हुए कहा कि वो बहुत ज्यादा क्लेवर है। Given time, उसे टाइम देना चाहिए। I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope, और उसे टाइम दोगे तो वह जो तुम्हारा नेटर का उसने क्या फाड़ा हुआ है, ब्लेजर फाड़ा हुआ है, उसे वो एक रस्सी बना सकता है। And made his escape from the window, और वो रस्सी बना करके रस्सी की हेल्प से विंडो से भाग सकता है। His presence in the house still is secret, अभी भी उसकी ग्रैंडमदर से टोटो की जो प्रेजेंस थी वो अभी भी एक सीक्रेट थी, अभी भी ग्रैंडमदर को यह पता नहीं था। टोटो was now transferred to a big cage in the servants' quarters, और टोटो को अभी एक बड़े से पिंजरे में सर्वेंट के क्वार्टर में ट्रांसफर किया गया। Where a number of grandfathers' pets lived very sociably together, जहां पर ग्रैंडफादर के पाले हुए बहुत सारे जो जानवर थे या बर्ड्स थी वो बहुत ज्यादा सोशल तरीके से, मतलब बहुत प्रेम से रहते थे। ए टॉर्टोइस, इसमें कौन कौन सी थी, एक टॉर्टोइस था, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्विरल, एंड फॉर ए व्हाइल माय पेट डॉग गोट। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जब टोटो को उस रूम पर रखा गया तो टोटो ने किसी भी जानवर को सोने नहीं दिया, वो उनको हमेशा परेशान करता था। So grandfather who had to leave Dehradun next day to the collect his pension, तो ग्रैंडफादर जो दूसरे दिन कहाँ जाने वाले थे, सहारनपुर, जिन्हें सहारनपुर जाना था, और जो देहरादून के लिए निकले थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोन, और उन्होंने कहा कि वह टोटो को अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि टोटो का बिहेव बहुत अच्छा नहीं था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और दुर्भाग्य से नरेटर अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन जो रास्ते में जो भी उसने हरकतें की टोटो ने, वह आने के बाद ग्रैंडफादर ने उसे बताई। अ बिग ब्लैक कैनवास के बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, और टोटो को ले जाने के लिए एक बड़ा सा कैनवास का बैग लाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, और फिर से कुछ होल बनाया गया उसके हवा सांस लेने के लिए, और जब उस बैग को क्लोज किया गया, देयर वाज नो एस्केप, और कोई भी जगह छोड़ी नहीं गई। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वाज सो टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। तो कह रहा कि टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और टोटो अपने हाथों को बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रांग, और कैनवास इतना ज्यादा स्ट्रांग था फॉर हिम, उसके लिए, टू बाइट हिज
विद रो, वो उसे काट नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. His efforts to get out, और वो जो भी उछलने की कोशिश करता था या उससे बाहर निकलने की कोशिश करता था बैग से, the effect of making the big roll about on the floor, कभी वो क्या करता था उस बैग के अंदर से पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा था जिससे कि वो बैग नीचे लुढ़क जाता था, और occasionally jump into the air, और कभी कभी वो बैग के साथ ही हवा में उछलता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on देहरादून रेलवे स्टेशन, जिससे कि अब वह कभी लुढ़कता था वो बैग, उसके अंदर मोंकी था, और कभी हवा में चलता था, जितने भी लोग देहरादून रेलवे स्टेशन पर थे वो उन लोगों के लिए अट्रैक्शन का कारण बन चुका था। टोटो रिमेन्ड इन बैग एज फार एज सहारनपुर, और सहारनपुर में भी टोटो बैग के साथ ही रहा। बट व्हाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, और जब ग्रैंडफादर अपने रेलवे का टिकट लेने के लिए टिकट विंडो पर गए, टोटो सडनली पुल्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो अचानक से टोटो ने इस बैग से अपना जो सर था वो बाहर निकाल दिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और उसने क्या कर दिया, एक बड़ी सी मुस्कान से छोड़ दी टिकट कलेक्टर को देख के। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, अब वो थोड़ा सा पीछे की ओर हट गया टिकट कलेक्टर। With great presence of mind and much to grandfather's annoyance, और उसने great presence of mind, उसने बहुत तत्परता से and much to grandfather's annoyance, और ग्रैंडफादर को देखते हुए उसने कहा कि सर you have a dog with you, उसने कहा कि तुम्हारे पास एक कुत्ता भी है, you will have to pay for it accordingly, और तुम्हें इसका भी टिकट पे करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag, फिर उन्होंने क्या कर दिया, ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as dog, और उन्होंने तो दिखाने की कोशिश की कि कोई भी मोंकी डॉग की तरह क्वालिफाई नहीं हो सकता। और इवन एज ए क्वाड्रंट टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग क्योंकि टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग बोला था। एंड 3 रुपी वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और कहा कि आप क्या देंगे 3 रुपीज, इसका जो जर्नी का जो पे है वह ग्रैंडफादर को देना पड़ेगा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टू फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज एंड सेड, और ग्रैंडफादर ने थोड़ा सा पीछे गए और अपनी जेब से टॉर्टोइज निकाला और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, अब मुझे इस टॉर्टोइज के लिए क्या पे करना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर द ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सारे एनिमल्स के लिए क्या करते हो, चार्जेस लेते हो, टिकट के चार्जेस लेते हो। तो उन्होंने अपने पॉकेट से एक टॉर्टोइज निकाला और पूछा कि इसका क्या चार्ज होगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, तो टिकट कलेक्टर ने बहुत ध्यान से उस टॉर्टोइज को देखा, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, और थोड़ा सा अपने 4 फिंगर्स से उसे हिलाया। गेव ग्रैंडफादर से प्लीज्ड एंड ट्रिम्पेंट लुक, और उसे हंसते हुए स्माइल करते हुए ग्रैंडफादर की ओर देखा। नो चार्ज, इट्स नॉट ए डॉग, और कहा कि यह डॉग नहीं है तो इसका कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। सो डियर्स, इट वाज आवर लेक्चर इन इंग्लिश फॉर टुडे। वी विल रीड फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।